Good evening. How are you? Are you happy? Are you ready to learn? Actually, I didn't want to buy this type of mobile, but today I am using this mobile just because of you. Because my students had many complaints. All the time they had a complaint, sir. You improve your video quality, improve your sound quality, voice quality. I think these things are very important. Without video quality, without sound quality, nobody like the videos. Okay, that is why we have to follow the guideline of the students. We have to follow the instruction of the students. Okay, everywhere. Tell me one thing. If a shopkeeper has a many products, a shopkeeper has a many product, but the customers are not satisfied with the product. The customer who consume the product, they are not satisfied. So the customer suggests to the shopkeeper that you should improve these things, you should keep these things in your shop. So what is your opinion, that shopkeeper should agree with the customer or not? Customer should, the shopkeeper should agree with customer or not? Yes, of course, because the shop is a shop because of customer. Shop is nothing without customer, and that is why it is said the customer is a god. ऐसा कहा जाता है, customer is a god. If you, of course, if you are watching my video, you are consumer, you are consumer, not customer, consumer. Actually customer is, you are called customer when I earn a profit by you, but generally I am not earning any profit by you, but you like and share and comments and you compliment. It's a greatest profit for me. It's a greatest and big profit for me. And everyone always does not like for money and does not like earning money or does not like reputation or does not like name and fame, but the some work is done for the self satisfaction. Okay, the video creating is also a type of a self satisfaction. That is why I every day continue upload video on the YouTube channel. Okay, so that's why I am very happy that you all are the part of this class, and I want to show you also in this video. Okay, tomorrow I will try to record you continuously. ठीक इस साइड से मैं चमक रहा हूँ, इस साइड से थोड़ा काला दिख रहा हूँ। हाँ सही बात है। अभी एक बात समझ में आई, एक औरत ने क्या किया कि देखो ज़्यादा आर्टिफिशियल तामझाम का क्या नुकसान होता है। एक औरत ने क्या काम किया कि ब्यूटी पार्लर चली गई, वो बहुत ज़्यादा तैयार हो गई और घर आने के बाद उसने अपने मोबाइल में फेस लॉक लगा लिया, फेस लॉक। अब उसके बाद जब उसका चेहरा धुला तो पता चला कि अब मोबाइल उसका खुल ही नहीं रहा, उसका लॉक, क्योंकि उसका मोबाइल उसका फेस पढ़ ही नहीं पा रहा। अब वो औरत देख रही कि ब्यूटी पार्लर कहाँ है, अब ब्यूटी पार्लर बंद है 3 दिन से, अब औरत का मोबाइल का पासवर्ड नहीं खुल रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि मोबाइल जो है इतना सेंसिटिव है, खासकर आईफोन तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो जरा डिफरेंट, अगर आंख बंद भी है ना तो वो आंख बंद में नहीं खोलते। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो आपके सामने ले गए और खुल गया, फेस लॉक नहीं खुलेगा जब तक आप आंखें नहीं खोलोगे। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज से ठीक भी है और जोक भी है। ठीक है, चलो, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी इंग्लिश की शुरुआत मॉडल्स से होती है। ठीक है, मॉडल्स मतलब मॉडल्स, मॉडल मतलब नमूना, है ना, मॉडल। तो यहाँ पे जो हमारे मॉडल होते हैं बहुत सारे होते हैं, लगभग 12-13 प्रकार के हम मॉडल पढ़ते हैं। कुछ इसमें मॉडल सेमी मॉडल होते हैं। तो 12-13 मॉडल में से जो महत्वपूर्ण मॉडल है जिनको हमने कल पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल, किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाते हो तो आपको बोलना पड़ता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो, क्या मैं खेल सकता हूँ, मे आई प्ले, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम। अब मान लो किसी से ऐसा बोलो कि व्हाट इज योर नेम, इसका शुद्ध हिंदी में तेरा नाम क्या है, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो क्या हो जाएगा, मे आई नो योर नेम। मान लीजिए आप कॉलेज गए, कोई लड़की दिखी, आपको उसका नाम जानना है, तो आप उससे क्या पूछोगे, मे आई नो योर नेम। ये थोड़ी बोलोगे तुम नाम तो बताओ, ऐसे बोलोगे क्या? ये थोड़ी बोलोगे अरे सुनो तो तुम नाम तो बताओ। या आपने ये बोलिए, जैसे जनरली गांव में, बाई सुनो तो, वो बोलेगी मैं बाई लग रही हूँ क्या? बाई का मतलब होता है बड़े शहरों में काम वाली बाई। ठीक है, तो कॉलेज में आंटी तो बोल नहीं सकते, फिर तो महाभारत ही हो जाएगा। तो जनरली आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, मे आई नो योर नेम। ठीक है, एक्सक्यूज मी,
बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ आपने कहीं कहीं से दीदी या सिस्टर भी बोल दिया। हाँ हाँ। और आंटी बोल दिया तो सेम लड़ाई हो जाती है। दीदी सिस्टर में भले ही ना हो, लेकिन बहन जी में तो हो जाती है। किसी को बोल दो बहन जी, बोलेंगे हैं मैं तेरे को बहन जी लग रही हूँ, फिर अब बोलो क्या? अब मुसीबत है, इसलिए कुछ मत बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो। एक्सक्यूज मी, मे आई नो योर नेम। सामने वाला खुद ही बोल देगा यस ऑफ कोर्स माई सेल्फ, जो भी नाम होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छे से बोलने के लिए हमें आना चाहिए चीज़ें। तो परमिशन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सिट। क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ? मे आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? है ना, जैसे किसी से कुछ पूछना है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं आस्क यू अ क्वेश्चन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये सब नहीं बोलते, पूछ ही लेते हैं, ठीक है। ये दोस्ती में चलता है, वो नहीं बोलेगा कि मैं आई यूज योर पेन, वो आपकी जेब में से पेन नहीं निकालेगा, वो सीधा खींच लेगा। तो फिर आप बोलोगे अरे यार ये क्या कर रहा है, बोले अरे रुक जा, मर रहा है ना। वो ज़्यादा रोकोगे और कहो तो लिखने के बाद पेन ही ना मिले आपको। तो दोस्तों से ये बात सावधान रहना चाहिए, चश्मा पेन एन बड़े संभाल के रखो। मेरे ये सही बात है, यस राइट राइट, सही बात है। अगर कैप हाथ में आ गया पेन का जो ऊपर वाला ये, और पेन आपने पकड़ लिया, तो वो क्या तू पेन दे दे नहीं तो मैं जेब फेंक रहा हूँ बाप तेरा। तो ये है। तो जनरली फ्रेंडशिप में ऐसे ही होता है कि आई थिंक आप वहाँ फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या मैं आपका ये ले सकता हूँ, क्या मैं आपका ये दे सकता हूँ। आपको तो जो करना है वो कर लो, ठीक है। जैसे ट्रेन में कई बार अपने यहाँ जो इंडियन जो भीड़ भड़का होती ना पैसेंजर ट्रेनों में, तो वहाँ पे आप किसी से पूछोगे मे आई सिट हेयर, तो वो कभी बैठने नहीं देगा, वो सीधा धक्का मारो और बैठ जाओ, तभी बैठ पाओगे आप, ठीक है। अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम। फिर भी मे का प्रयोग वहाँ जो परमिशन के लिए, ठीक है। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मे आई डिस्टर्ब यू? चलो मैं अब बोलूँगा, आप इंग्लिश में बोलेंगे यस यू मे, और नहीं बोलना है तो नो यू मे नॉट। मे आई डिस्टर्ब यू? मे आई डिस्टर्ब यू? यस यू मे। मे आई डिस्टर्ब यू? यस यू मे। मे आई गो टू मार्केट? मे आई टॉक टू यू? मे आई टेक हर प्लेस? मे आई टेक हिज प्लेस? क्या रहता है मे आई टेक हिज प्लेस, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? क्या हुआ, एक औरत थी, उसका पति एक्सपायर हो गया। औरत काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत फूट फूट के रो रही थी कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम क्यों चले गए, है ना, मुझे इस हाल में छोड़ के चले गए। तो एक आदमी था, उसे दया सी आ गई, तो उसने कहा भाभी क्या मैं आपके पति की जगह ले सकता हूँ? वो आंसू पहुँच के बोली भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो, ठीक है। मतलब ये है कि उसने बोला कि मे आई टेक हिज प्लेस, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? तो उसका हमें कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो कब्रिस्तान वाले, तुम्हें ले लें, पति को लौटा दे, तुम्हें लिटा दे रहे हैं चिता पे, ठीक है। तो ये बात है। मे आई डांस विथ यू? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ठीक है। मे आई ड्राइव कार? ठीक है। जैसे कि एक लड़के ने लड़की से पूछा कि तुम मुझे इतना चाहती हो, उसने कहा कि मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? लड़के ने कहा यस ऑफ कोर्स। लड़की ने कहा यस ऑफ कोर्स। लड़के ने कहा व्हाट डू यू लाइक इन मी, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? लड़की ने कहा तुम्हारे पीले दांत। तो लड़के ने कहा क्यों? लड़की ने कहा क्योंकि पीला कलर मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये बात है कि मे आई आस्क यू समथिंग? यस ऑफ कोर्स। व्हाट यू लाइक इन मी, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? योर येलो टीथ, ठीक है। वाई? बिकॉज येलो कलर इज माई फेवरेट, दैट्स वाई, ओके। मजाक भी उड़ गई। अब समझदार होगा दूसरे दिन से ब्रश कर लेगा ढंग से, और नहीं तो रास्ते तो खाई रहे रोज, है ना। अच्छा सर सेम बोलते अगर मुझसे करेगा हाँ मैं बोलूंगा आइस। तुम्हारी आंख है? आगे पसंद अच्छा अच्छा ठीक मेरे है। को ब्लैक कलर पसंद। अच्छा ओके, गुड गुड, ब्लैक कलर पसंद है इसलिए आंखें पसंद। सबको कुछ ना कुछ पसंद ही रहता है यार, है ना। लेकिन ये है कि एक चीज के पीछे इतनी बड़ी जो बलाएं ले आते हो आप लोग, समस्या। व्हाइट कलर की ब्लैक और व्हाइट दोनों हो जाएगा, व्हाइट भी और ब्लैक। लेकिन कई बार ऐसा रहता है ना, आदमी एक चीज के चक्कर में जो बलाएं लेके जाता है, जो समस्या लेके जाता है। मान लो आंखें तो अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो 70 किलो का आदमी आ रहा है उसे क्या करोगे? या मान लो कोई लड़की की आंखें पसंद है आपको, या उसकी हेयर स्टाइल पसंद है कुछ भी, लेकिन उसके साथ जो 80-90 किलो की जो आ रही है, उसे वो भी तो फिर पसंद करना पड़ेगा आंखों के चक्कर में फिर तब, ठीक है। लगेज लेके आ रहे हैं तुम लोग, ठीक है। तो ये भी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर इट इज़ अप टू द चॉइस ऑफ द पर्सन। बट रिमेंबर ऑलवेज, डू नॉट
do not make hard decision and do not take your decision hard and fast, okay, in the situation when you like any part of body, okay. अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, मे आई स्मोक सिगरेट? No, you may not. यू मे नॉट, क्या बोलोगे? यू मे No, you नॉट। may not. मे आई ड्रिंक वाइन? No, you may not. यू मे नॉट, ठीक No, है। yeah. मे आई गो टू मार्केट? No, yes, you may. Yes. यस यू मे। मे आई कुक फूड? Yes, you may. ठीक, चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं कैन। आज ये बिगिनिंग है, शुरुआत से। अगर कोई भी अगर देखना भी चाहे तो अगर इधर से शुरू करेगा ना, हमारे 2 लेसन चल रहे हैं दरअसल। एक जगह हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन आंसर पे, जहाँ पे हमने करप्शन के क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके आगे पहुंच रहे हैं, और हमने पैसिव वॉइस के भी कर लिए, और अभी ये शुरुआत है, बिगिनिंग। मतलब लगभग हम सोच रहे हैं कि 2 बैच चलाएंगे। एक में हम ये बताएंगे कि पैसिव वॉइस के आगे कैसे पढ़ना है, जिनकी पढ़ाई आगे हो गई वो वहाँ से कर लेंगे, और जो आप जैसे जो स्टूडेंट है, जो बिगिनर है, वो यहाँ से कर लेंगे। कैन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एबिलिटी की बात होती है। कौन सी बात होती है? एबिलिटी। हिंदी में कहें तो क्षमता, जहाँ क्षमता की बात होती है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, जैसे कि तुम जा सकते हो, क्या हो जाएगा? You can. तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, You can study. तुम पढ़ा सकते हो, You can. यू कैन टीच, तुम पढ़ा सकते हो, You can teach. तुम मेरी मदद कर सकते हो, You can help me. ठीक है। तुम नाच सकते हो, You can dance. तुम नहीं नाच सकते, You can't dance. यू कांट डांस। क्या तुम नाच सकते हो? You can dance. कैन यू डांस? Can you dance? क्या तुम नहीं नाच सकते? Can't you dance? कांट यू डांस। Why can you तुम dance? तुम क्यों नाच सकते हो? Why can you dance? वाई कैन यू डांस, ठीक है। Why cannot you dance? तुम क्यों नहीं नाच सकते? वाई कांट यू डांस, ठीक है। तुम डांस कर सकते हो, You can dance. You can dance. तुम नहीं नाच सकते। You can't dance. क्या तुम नाच सकते हो? Can you dance? क्या तुम नहीं नाच Can you सकते? dance? तुम क्यों नाच सकते हो? Why can't you dance? तुम क्यों नहीं नाच सकते? Why can't you dance? अगर हम डांस की जगह वर्ब चेंज कर दें, हम कहते हैं कि तुम खेल सकते हो, You can play. यू कैन प्ले। हमने बोला कि तुम पढ़ सकते हो, You can study. रीड। चलो स्टडी भी। हमने कहा तुम बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? Talk. Speak. यू कैन स्पीक, ठीक है। हमने बोला कि तुम सो सकते हो, You can sleep. यू कैन Sleep. स्लीप। तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप। हमने बोला कि तुम कार चला सकते हो, You can drive car. यू कैन ड्राइव कार। हमने बोला कि तुम खाना पका सकते हो, You can cook food. यू कैन कुक फूड, ठीक। कोई दिक्कत? कुछ भी कर सकते हो। तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू। तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू। You can't drive car. तुम नहीं जा सकते, You can't go. तुम नहीं आ सकते, You can't come. तुम नहीं खेल सकते, You can't play. तुम नहीं पढ़ा सकते, You can't teach. तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, You can't help me. यू कांट हेल्प मी, ठीक है। कई बार तुम कह रहे हैं कि भाई मैं मदद कर दूंगा, सामने वाला कह रहा है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प मी, ठीक है। कर तो सकते हो लेकिन नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प मी। क्या तुम नाच सकते हो? Can you dance? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? Can you teach me? कैन यू टीच मी? क्या तुम दौड़ सकते हो? Can you run? कैन यू रन? क्या तुम खेल सकते हो? Can you play? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? Can you teach me? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? क्या तुम कार चला सकते हो? Can you drive car? कैन यू ड्राइव कार? क्या तुम खाना पका सकते Can हो? you cook food? ठीक। चलो अब मैं आपसे इंग्लिश में पूछता हूँ, Yes. कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak. यस आई कैन। कैन यू ड्राइव कार? Yes, I can drive car. यस आई कैन। Yes, I can. देखो कैन मैन बाद में कह लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बाद में, पहले अच्छे से पहले सीख ही जाए अपन। Correct. अब एकदम से अगर आप सोचते हो कि जो बिल्कुल देहाती भाषा बोलने वाला आदमी है, उससे डायरेक्ट सोचते हो कि आई थिंक ही स्पीक्स लाइक अमेरिकन, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट ओके टू नो, ओके। और अलग अलग हर देश का अपना एक प्रोनाउंसिएशन है, इंडिया का भी अपना प्रोनाउंसिएशन है। बस एक शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो अच्छी बात है, वो लहजा तो आप में बोलने का नहीं आएगा, है ना। So pronunciation. हाँ, प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कि असेंट इज अ डिफरेंट थिंग। असेंट होता है उच्चारण वैसा, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन अलग चीज़ है। प्रोनाउंसिएशन है असेंट, वो जो लहजा, असेंट होता है लहजा, बोलने का अंदाज, ठीक है, वो अलग है। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन स्पीकिंग वे,
their own accent. India has its own accent. Okay, so we should follow the Indian accent. And बहुत ज़्यादा अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की फ्राक में नहीं रहना चाहिए, खासकर लैंग्वेज के मामले में। अपने आप जब एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो अपने आप लैंग्वेज इंप्रूव होती चली जाती है। ठीक है, पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लें, समझ लें कि कोई आदमी बोले तो हमें समझ में आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई करना सीख जाएं। प्रोनाउंसिएशन तो धीरे धीरे आ ही जाएगा आपको। I try to speak English very negligence. हाँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। I try to speak English very negligence. मैं इंग्लिश बोलने में प्रोनाउंसिएशन में लापरवाही करता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं बोलेंगे उसे, ऐसा बोलेंगे कि आई एम केयरलेस अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। Careless. आई एम केयरलेस अबाउट प्रोनाउंसिएशन, लापरवाही इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केयरलेसनेस, अच्छा, careless. केयरलेसनेस या आई एम केयरलेस। ठीक है, Negligence. निगलेक्ट अनदेखा करना, निगलेक्ट, नेग्लिजेंस अनदेखी करना होता है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं आई बेसिकली निगलेक्ट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, बट जनरली यही है कि आई डू नॉट केयर अबाउट प्रोनाउंसिएशन, आई डू नॉट केयर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। ऐसा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना मुझे कोई मतलब नहीं था, अपन यही बोलते आई डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट दिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस। चलो, तो कैन समझ में आ गया? चलो, तो इंग्लिश में और पूछ लेते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can. कैन यू ड्राइव कार? Yes, I can. कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? Yes, I can. कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? Yes, I can. यस आई कैन, Yes, I can. यस ऑफ कोर्स। चलो, अब हम बात करते हैं, कैन समझ में आ गया और बोलना भी आ गया आपको। अब हम बात कर रहे हैं शुड। शुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सजेशन। कहाँ करते हैं? सजेशन, एडवाइस। Advice. ठीक है, सजेशन और एडवाइस के लिए हिंदी में अगर कहें तो क्या होता है? सलाह, सलाह. है ना, परामर्श, परामर्श, मशवरा, सलाह, परामर्श, मशवरा। ये मशवरा उर्दू भाषा का शब्द है, मशवरा। ठीक है, मशवरा कर रहे हैं हम लोग, सलाह, परामर्श। कई बार आप जब किसी से बात करते हो तो ये बार बार पूछना पड़ता है, अब क्या करें? इसकी जो पहचान है वो चाहिए होती है। क्या होती है? चाहिए, या हो जाती है, अपनी भाषा में बोलते हैं चाहिए, शॉर्ट में बोल देते हैं। या मान लीजिए क्या करें, जैसे हमने कहा कि क्या करना चाहिए, तो कई बार ये बोलते हैं अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करें। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती कि अब मैं कहाँ सोऊं, है ना, अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं। तो देखो, अब मैं क्या खाऊं, ठीक है, अब मैं क्या पढ़ूं, अब मैं कहाँ बैठूं। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाते हैं कई बार, जबकि सुड आ ही नहीं रहा उसमें, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे यार सर सुड तो आ ही नहीं रहा, आप तो कह रहे हैं मैं कहाँ बैठूं। ठीक है, लेकिन आएगा सुड उसमें। ठीक है, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है, मैं कहाँ बैठूं, वेयर शुड आई सिट, यही बात है। तो ऐसी स्थिति में भी हम शुड का ही प्रयोग करेंगे, बताने का ये मतलब है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सलाह, ओके, जैसे कि ओके नो प्रॉब्लम, जैसे हम कहते हैं सलाह कितनी देते हैं हम लोगों को, फ्री की सलाह भारत में बहुत मिलती है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। लेकिन खुद से अपन बोलें कि तुम ऐसा कर लो, वो बोलता नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस तुम कर लो। क्योंकि सलाह देने के लिए तो ऐसा है कि एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, और सहयोग करने की क्या बात आएगी तो 1000 ढूंढोगे एक भी नहीं मिलेगा। सहयोग वाली बात उल्टी होती, सलाह फोकट की कोई भी दे देता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हम आपको भी सलाह दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, You should get up. अर्ली मॉर्निंग, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, You should help. यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, You should help the poor. तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, You should earn money. तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। You should go to temple. ठीक है, तुम्हें सच बोलना चाहिए, You should true. यू शुड स्पीक ट्रुथ, तुम्हें You इन should speak truth. ट्रुथ। ठीक है, तुम्हें बैठना चाहिए, You should succeed. तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, You should try. यू शुड ट्राई। ठीक है, तुम्हें दौड़ना चाहिए, You should run. तुम्हें शादी कर लेना You चाहिए। should marry. ठीक, चलो अब कुछ मना करने के लिए सलाह दे जाते हैं, कोई ऐसे काम मत करो भाई, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, You should not smoke. यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, You should not drink wine. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। You should not lie. ठीक है, तुम्हें
लेट नहीं होना चाहिए। You shouldn't late. यू शुड नॉट बी लेट, यू शुड नॉट बी लेट, बी लेट होना, बी, यू शुड नॉट बी लेट। तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, You should go outside. तुम्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए, You should forget me. यू शुड नॉट फॉरगेट मी, You should not forget. यू शुड नॉट फॉरगेट मी, तुम्हें मुझे नहीं भूलना चाहिए, You ठीक है, should forget me. ठीक है। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, You should take bath daily. यू शुड बाथ डेली, ठीक है। चलो अब मैं कुछ अपने लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, शुड आई, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं वर्ब लगाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया, आई एम टायर्ड, व्हाट शुड आई डू, यू शुड टेक रेस्ट। आई एम टायर्ड, व्हाट शुड आई डू, यू शुड टेक रेस्ट। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू, यू शुड अर्न मनी, यू शुड अर्न मनी, ठीक है, ओके। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू, You should consult doctor. यू शुड कंसल्ट विथ डॉक्टर, ओके। चलो ठीक है। एंड आई एम इन अ प्रॉब्लम, अ पर्सन इज थ्रेटिंग मी अगेन एंड अगेन एंड ही इज थ्रेटिंग मी टू कंप्लेन टू द पुलिस, व्हाट शुड आई डू, You should advise advocate. यू शुड कंसल्ट विथ एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट साहब भी क्लास में बैठे हैं, यहीं कहीं सलाह ले लेंगे। एक स्टूडेंट है, उसको भी सलाह लेना है आपसे, वही विजय का भाई, वो कह रहा था हमें भी कुछ केसेस चल रहा है, मैंने कहा ले लेना सलाह, भी फ्री में मिल जाएगी, वहाँ जाओगे फीस लग जाएगी इधर फ्री में करवा देंगे, ठीक है। चलो तो माई मोबाइल इज ओल्ड, व्हाट शुड आई डू, यू शुड परचेस न्यू मोबाइल, वेरी गुड। आई एम फीलिंग बोर, आई एम फीलिंग बोर, व्हाट शुड आई डू, Joking student. यू शुड यू शुड जोक विद स्टूडेंट। देखिए अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं खुद भी कैसे जोक करके और खुद को एंटरटेन कर सकता हूँ, भाई ये तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे, मैं बोर हूँ का तो आपको कुछ करना पड़ेगा चमत्कार, और आप बोर हो गए तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एंटरटेन एक ऐसा जो खुद को नहीं कर पाते हम। है कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, कुछ है या फिर, ठीक है। वी शुड क्रिएट अ सिचुएशन टू बी हैप्पी ऑलवेज, और हम ऐसे ही करते रहते हैं कि हमारे आसपास सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ओके। चलो ठीक है। तो आई एम फीलिंग बोर, व्हाट शुड आई डू, you should operate mobile, you should watch video, you should go outside for walking, there are many ways to be happy, okay। chalo theek hai, now let me ask the one thing that I am feeling hungry, what should I do, you should eat food, okay, very good। I am weak in English, what should I do, it's also your question, ये आपका भी सवाल है कि I am weak in English, what should I do, you should learn English। how should I learn English, हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, यू शुड ज्वाइन कोचिंग क्लास। अच्छा, कुछ लोग वैसे भौचक्के होकर देख रहे हैं, जैसे ये दोनों, पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में इतनी देर से, समझ में कुछ आ नहीं रहा, मंत्र टाइप के पढ़ रहे हैं। तो देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। वन डे इट हैपन्स, आई सेड, एक व्यक्ति ने, मैं गाड़ी से जा रहा और कार पास से निकाल दी तो मेरे ऊपर पानी उछल गया। मैंने कहा हराम खोर साला, देखो देख के भी नहीं चला सकता, ठीक है। सेम सिचुएशन यही हुई कि मैं एक बार दूध लेने जा रहा था, मैंने भी गाड़ी पानी में से चला दी। अब वो कहती पापा आप भी तो हराम खोर हो। आई शॉक्ड। मैंने बोला क्यों बेटा, बोले पापा आपने भी तो गाड़ी चला दी पानी में से। तो उसे ऐसा लगता है कि जब भी कोई पानी में गाड़ी चलाता है तो हराम खोर रहता है वो। तो ऐसा है कि बच्चे वो तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, दे कॉपी। सेम थिंग इन क्लास, वट एवर वी वॉच, वट एवर वी लिसन। The children's behavior is made by two situations like first environment, second genetics. Of course, I think the first genetic and second environment. Really, I think that the surrounding teach us always, all the time, all the minute, all the second, that surrounding teaches something or the other. Whatever we are today, it is the grace of our environment. It's because of environment. If you are successful, it's thanks of your environment. If you are failed today, somewhere or the other, your environment is responsible for that, because our society teach us always. We do not learn only from the books, but also from the society. This is the very important thing, is a very common thing, okay. And as far as the children are concerned, children not only learn what is taught to them, but also learn what is observed by them. बच्चे वो नहीं सीखते जो उनको एक एक घंटे का लेक्चर पिलाते हो आप, बच्चे वह सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर मान लीजिए
कोई भिखारी है और आप जा रहे हो और अगर बच्चों के सामने आपके जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर आपने भिखारी को सम्मानपूर्वक दे दिया, तो बच्चे के दिमाग में छप जाएगा कि यार ऐसा कोई काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में आप खाने से पहले अगर आपके दादा दादी का ध्यान रखते हो कि नहीं, अरे दादा दादी को खाना नहीं दिया, पिताजी को नहीं दिया, और अगर बच्चा बैठा है आप उसे कह नहीं रहे, चुपचाप आप बोले नहीं बाद में खाएंगे, पहले दादा दादी को दे के आओ, उनके मानस पटल पर, बाल मन पर यह छवि अंकित हो गई है कि ऐसा कोई सदस्य है, सुपर सीनियर पर्सन, जिसके बिना पापा खाना नहीं खाते, या मम्मी, मतलब उनको, तो वो जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो बच्चे वो सब सेम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ कॉपी चलती, कॉपी पेस्ट हो रहा है चीज़, वो देख रहे हैं उस चीज़ को। अगर आपके सिद्धांत ऊंचे हैं, आपके आदर्श ऊंचे हैं, आप हर चीज़ों को संभाल के रखते हैं, बड़े सिक्योरिटी से रहते हैं, सुरक्षा से रखते हैं, आप बात किस प्रकार की करते हो, वाइफ से कैसी बात करते हो, लोगों से कैसी बात करते हो, कैसा ट्रीट करते हैं, दे आर वॉचिंग ऑल द थिंग्स, ओके। यहाँ तक कि मांगना अपराध है कानून में? हाँ अपराध है ना, देखिए भीख मांगना अपराध ही है, अपराध ही है भीख मांगना। लेकिन देखो यार, मानवता के नाते अगर कोई हैंडीकैप है तो जो फिजिकली फिट हैं, आई थिंक दे आर नॉट, दे शुड नॉट बी अलाउड टू टेक बैग और begging, but the person is physically disabled and not the physically not capable to earn survival, so he should be given money, okay। I think कहते हैं ना, माना कि लाखों पेट हैं पर उससे दुगने हाथ, क्या दिक्कत है अगर मान लीजिए if somebody is a physically challenged, is handicapped, is not able to earn his survival, so I think that he should be given a little amount of the money or whatever you have, ठीक है। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, वो नहीं कमा सकता, तो उसको देने में क्या हर्ज है, अपना जा क्या रहा है थोड़ा बहुत उसको, तो ऐसा ठीक है, बट मांगना तो गड़बड़ है। हालांकि गवर्नमेंट ने सबकी व्यवस्था की है पर उन तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसलिए सुट का प्रयोग वहाँ करते हैं हम लोग जहाँ पे सलाह पर है। जैसे मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ और को सलाह लेता हूँ कि शुड आई स्मोक सिगरेट, You shouldn't. यू शुडंट, शुड आई स्मोक सिगरेट, You shouldn't. शुड आई प्ले क्रिकेट, Yes, you should. I want to purchase mobile, Yes, you should which purchase. mobile should I purchase? You already purchased. You already purchased Mobile iPhone. iPhone 15 Pro Max. 15 Pro I think in this market it is the highest expensive mobile, highly है ना, highest expensive mobile। यहाँ के मार्केट में तो ये सबसे महंगा मोबाइल हो गया। 56,000. नहीं नहीं, हाँ हाँ राइट, ओके ओके, वो तो सब ले ला के उसका पूरा एसेसरीज लगभग 1.6 के 1,60,000 के आसपास पड़ जाएगा, और कुछ कुछ लेके पेन लगेंगे अभी उसमें, कुछ कुछ अभी जब पिक्चर क्वालिटी इनहेंस हो पाएगी। 6,000.